Good morning, my dear students. Today I am back again here with a new lecture for class 3, subject English Reader, chapter number 2, and this is your lecture number 3, and your book's name is Essence. Yesterday I showed you the picture of this book, and today's topic is explanation of the same lesson, The Lark's Nest. Yesterday I explained half lesson and today I will complete this lesson. So the leftover part we will discuss today, and then you will get your homework and you will get the previous homework solution also. So my dear students, yesterday whatever I taught you, I hope you understood this. If you have any query, then please let me know, but I don't think so you have a query regarding this, because this lesson I have explained very precisely, thoroughly. So now we will start again this lesson from where we left. We will start from there only. Okay, so let's start. Points to be covered. The same points we will cover today also. Left part of the lesson means yesterday I taught you half part and today I will take leftover part also. जो part रह गया तो वो आज हम लेंगे. Underline new words, same thing कि जो मैंने कुछ words underline किए हुए हैं वो आप words देखोगे कौन कौन से मैंने words underline किए हुए हैं, या फिर जो नहीं भी किए हुए अगर उसमें भी थोड़े बहुत difficult मेरे को लगते हैं बीच बीच में, then I will let you know about this also. Homework you will get means, as you know very well, you get your homework daily, so you will get your homework. And last but not the least, previous homework solution means the yesterday I uploaded a homework and today you will get the solution of this homework. And many of the parents have submitted me homework online also, so you can cross check your homework also. कुछ पेरेंट्स ने मुझे मेल किया हुआ है, तो आप अपना होमवर्क अब क्रॉस चेक भी कर सकते हो. कुछ पेरेंट्स का होमवर्क में चेक भी, अगर आपको प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत भी, तो आप इसमें चेक कर सकते हो. ओके, सो दीज थिंग वी विल कवर टुडे. लेफ्ट पार्ट ऑफ द लेसन, अंडरलाइन न्यू वर्ड्स, होमवर्क एंड प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन. सो लेट्स बिगिन आवर लेसन. Characters, yesterday I also taught you, I also told you about the characters, so today also we will take the same thing because it will help you to memorize the things easily again. So narrator, here I your teacher means I am your narrator here. As your book, whosoever had written your book means the author of the book will be considered as narrator. But now here, as I am explaining you this lesson, so I am your narrator. Farmer, ऑनर ऑफ द wheat field, जो ऑनर हैं wheat field के, जिनका wheat field है वो ये उनका जो खेत है. राम, फार्मर सन, राम फार्मर का बेटा है, छोटा बेटा. रघु, फार्मर सन, रघु फार्मर का बड़ा वाला बेटा है. मदर लाक मतलब जो मदर हैं बेबीज़ की, जो यंग वंस के ऊपर बेस्ड जो लेसन है उसकी जो मम्मी है, मदर लार्क. बेबी लार्क 1 एंड बेबी लार्क 2, ये सेम करेक्टर्स मैंने आज भी आपको बता दिए हैं, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई करेक्टर याद ना हुआ हो, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप इसको देख के दोबारा एक बार उसको रिकॉल कर सकते हो ईजीली. तो ये नरेटर, फार्मर, राम, रघु, मदर लार्क, बेबी लार्क 1 एंड बेबी लार्क 2 ये प्ले के करेक्टर्स हैं. बेटा जब भी करेक्टर्स आते हैं ना, तो हमें मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो एक प्ले की फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, तो ये प्ले है क्योंकि इसमें सबके डायलॉग्स अलग अलग हैं. फार्मर जब बोलता है तो मैं फार्मर को अंडरलाइन करके देती हूँ उसमें, ठीक है, उसको हाईलाइट करके देती हूँ. जब राम बोलता है तो राम को मैं हाईलाइट करती हूँ. जब रघु बोलता है तो मैं रघु को हाईलाइट करती हूँ. जब मदर लार्क बोलती है तो मैं मदर लार्क को हाईलाइट करती हूँ. जब बेबी लार्क 1 बोलता है तो बेबी लार्क 1 को हाईलाइट करती हूँ. इन द सेम वे जब भी कोई भी बोलता है तो मैं उसको अंडरलाइन हाईलाइट करती हूँ. बट नरेटर को नहीं कर रही हूँ कि नरेटर मैं खुद हूँ यहाँ पर, दिस टाइम मैं खुद बोल रही हूँ, तो यहाँ पे आप नरेटर को अंडरलाइन या कुछ नहीं करेंगे. ओके, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर मैं आपको ये पूरी स्टोरी नरेट कर रही हूँ. सो हेयर आई एम योर नरेटर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन आवर लेसन. अब
हमने कल कहाँ पे छोड़ा था कि उसने अपने बेबी लार्क 1 या बेबी लार्क 2 ने पूछा था कि मम्मा आप इतना श्योर कैसे हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी हमें टेंशन लेने की नीड नहीं है, अभी तो उसने अपने रिलेटिव्स को बुलाया है, ये बोला था ना मदर लार्क ने कि अभी हमें टेंशन लेने की नीड नहीं है, वरिड मत हो, अभी उसने अपने रिलेटिव्स को बुलाया है, अभी आप टेंशन ना लो। तो ये सब हमने देख लिया था उसमें। अब हम स्टार्ट करेंगे कि मदर लार्क फिर क्या बोलती हैं जब चाइल्ड पूछता है उनसे, बेबी लार्क 1 पूछता है कि मम्मा ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कि हमें टेंशन लेनी, हमें वरी, हमें सोने के लिए जाना है, हम कोई टेंशन नहीं लें, आपने ऐसा क्यों बोला। तो अब मदर लार्क क्या बोलती है, चाइल्ड द रिलेटिव्स मस्ट बी हार्वेस्टिंग देयर ओन क्रॉप्स, कि मेरे बच्चे जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं फार्मर के, वो ज़रूर ही अपनी जो क्रॉप्स हैं, जो उसको जो उनकी जो फसलें हैं उनको वो काट रहे होंगे, उनकी कटाई कर रहे होंगे। ओके, तो क्या बोला, चाइल्ड द रिलेटिव्स मस्ट बी हार्वेस्टिंग देयर ओन क्रॉप्स, कि वो अपने खुद के जो उनके खेतों में जो गेहूँ उगे हुए हैं उनकी वो कटाई कर रहे होंगे। बट आई वॉन्ट यू टू लिसन वेरी केयरफुली वट यू हियर द नेक्स्ट टाइम, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम वो दोबारा वो सारी बात सुनो जो आगे अगर वो कुछ भी बात करते हैं ऐसी, जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट ना हूँ, मेरी एब्सेंस में अगर वो कुछ भी बात करते हैं फार्मर और उसके बेटे, तो आप उनकी सारी बात सुन के आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो वो उनसे मम्मा उनको दोबारा बोल के जाती है अपने बच्चों को, बी श्योर टू लेट मी नो एवरीथिंग, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें मुझे सारी ही बात बतानी है, ठीक है। मतलब उन बच्चों को सारी बातें दोबारा सुननी है, जो फार्मर और उसके सन बात करेंगे, अब वो बातें उनको सुन के दोबारा अपनी मम्मा को सारी बात बतानी है। तो वो उनको एक कहती है कि तुम्हें सारी बात सुननी है और सारी बात मुझे सब कुछ ही बताना है जो भी वो बात करते हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू लिसन वेरी केयरफुली, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ध्यान से सुनो, टू वट यू हियर द नेक्स्ट टाइम, कि जो भी तुम नेक्स्ट टाइम सुनोगे अब उनसे बातें, वो तुम मुझे बड़ी केयरफुली मतलब सुन के बताना। और बी श्योर टू लेट मी नो एवरीथिंग, और हाँ ये बात इस बात की श्योरिटी रखना कि तुम मुझे सारी ही बात बताओ ना। बेबी लार्क क्या बोलता है, टुगेदर, दोनों एक साथ बोलते हैं। आप देखो मैंने 1 और 2 नहीं लिखा, अब वो दोनों एक साथ बोल रहे हैं। यस मदर, व्हेन द फादर केम द नेक्स्ट डे, तो दोनों बेबी लार्क बोलते हैं यस मदर, ठीक है मम्मा। अब क्या होता है, व्हेन द फादर केम द नेक्स्ट डे, जब जो फार्मर है जब वो दोबारा आता है अगले दिन खेतों को देखने के लिए, ही फाउंड हिज ग्रेन ऑलमोस्ट रेडी टू फॉल टू द ग्राउंड, मतलब कि जो उनका फादर था, किनका, दोनों राम और रघु का, मतलब जो फार्मर था, जब वो नेक्स्ट डे आया तो उसने देखा कि जो उसके ग्रेन थे वो ऑलमोस्ट नीचे नीचे ही गिर चुके थे। जैसे गेहूँ जब पक जाते हैं तो वो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं, थोड़े लेट जाते हैं, तो ऐसे ही उसने अपने देखा कि उसके गेहूँ जो है वो नीचे गिरने के लिए हो रहे हैं, मतलब गिर ही चुके हैं ऑलमोस्ट। तो उसने कहा चलो हमारे जो गेहूँ हैं, जो अनाज हैं, जो वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कटने के लिए। तो उसको थोड़ी टेंशन हुई कि आज भी हमारे रिलेटिव्स भी नहीं आए, ठीक है। आगे क्या होता है, फार्मर बोलता है द गेन इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू बी कट, कि जो अनाज है वो बिल्कुल रेडी है कट करने के लिए। वी कैन नॉट वेट फॉर आवर नेबर्स एंड रिलेटिव्स एनी लॉन्गर, कि हम अपने रिश्तेदारों का और अपने नेबर्स का, पड़ोसियों का इंतज़ार नहीं कर सकते। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका वेट नहीं कर सकते, क्योंकि गेहूँ ऑलमोस्ट मतलब ज़मीन पे गिरने के लिए रेडी थे, ठीक है, गिरने ही वाले थे वो। तो अब उनका हम वेट नहीं कर सकते, अब ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला, रघु गो विद राम टू बान राइट नाउ एंड शार्पन आर सिकल्स। उसने बोला रघु राम के साथ जाओ खलिहान में, खेत खलिहान जो भी उनके हैं वहाँ जाओ अभी इसी वक्त। बान क्या होता है, खलिहान, खेत खलिहान से बोलते हैं ना जहाँ पे हमारे गेहूँ वगैरह उगते हैं। तो उसने बोला कि जाओ अभी के अभी जाओ, और हमारी जो सिकल्स हैं, सिकल्स होती है बेटा दराती बोलते हैं उसको, सिकल्स को। तो उसने बोला कि जाओ और जाके अभी के अभी जो हमारी सिकल्स हैं, जो दरातियाँ हैं, उनको जाके उनको ठीक करके आओ, मतलब उसको बिल्कुल शार्प करके आओ, टैनी करके आओ, ठीक है। तो उसने बोला खलिहान जाओ और हमारी जो
सीकल्स हैं वहाँ पे, दराती जो रखी हुई हैं उनको जल्दी से शार्प करके आओ। अगर शार्प करेंगे तभी तो वो गेहूँ इजीली कट कर सकते हैं उनसे। तो उसने अपने बड़े बेटे को बोला कि वो राम के साथ जाए और उनको शार्प करे, अच्छे से पहना करके आए सीकल्स को। सीकल्स क्या होती है? दराती। आपने देखा होगा अपने घर में दराती होती है ना, घर में जो गेहूँ वगैरह काटने के लिए यूज़ करते हैं उसको कहते हैं दराती। एट डॉन मतलब सुबह, भोर के टाइम। डॉन होता है सुबह का समय, भोर भी बोलते हैं इसको। जब सूर्य उगना नहीं होता, उगने वाला होता है जिस टाइम, ठीक है, जिस टाइम हमारे जो मतलब स्काई रेड हो रहा होता है, लेकिन पूरी तरह से जो सूर्य है वो उगा नहीं होता, उसको डॉन बोलते हैं। वो टाइम होता है डॉन वाला, 5 o'clock का टाइम में, 6 o'clock का, जब तक सूर्य उगता नहीं है तो वो डॉन होता है, भोर का समय। तो एट डॉन वी शैल गेट टू वर्क एंड हार्वेस्ट द ग्रेन आवरसेल्फ, कि सुबह भोर के टाइम हम सब अपने काम पे चलेंगे और अपनी जो ग्रेन है, हमारी जो फसल है, उसको अपने आप ही खुद ही काटेंगे। देखो अब वो फसल काटने के लिए, ग्रेन को हार्वेस्ट करने के लिए, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए अब वो किसी का वेट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो अब नेबर्स का वेट कर रहे हैं, ना ही वो रिलेटिव्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो व्हीट हैं वो ऑलमोस्ट राइप हो चुके हैं, पक चुके हैं कटने के लिए, रीप होने के लिए। तो अब वो किसी का वेट नहीं कर रहे हैं। उसके पापा को अब समझ में आ गया है कि हमें ये काम खुद ही करना पड़ेगा। जो फार्मर उसको अब समझ में आ गया है। इन द इवनिंग, अब शाम को क्या होता है देखते हैं। बेबी लार्क वन जो है, बेबी लार्क वन बोलता है वेरी वरिड, बहुत मतलब चिंतित है। वरिड का मतलब होता है चिंतित, ठीक है, टेंशन में जिसे कहते हैं हम। तो वो बहुत टेंशन में है, वो बोलता है चिप 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 चिप। मैंने बताया था कि इनको बोलने की इनकी साउंड होती है अपनी अपनी एनिमल्स की। जैसे डॉग बाग बाग करता है तो ऐसे ही भोंभो करता है, तो ऐसे ही जो इसकी लाख की जो बोलने का वे होता है वो होता है चिप चिप चिप। तो वो होता है चिप चिप चिप। मदर, टुमारो मॉर्निंग द फार्मर एंड हिज सन्स विल हार्वेस्ट द क्रॉप देमसेल्व्स, कि मम्मा कल मॉर्निंग में, कल सुबह, द फार्मर जो फार्मर है, किसान है, एंड हिज सन्स और उसके जो बेटे हैं, विल हार्वेस्ट द क्रॉप देमसेल्व्स, वो खुद ही अपनी क्रॉप्स को काटेंगे। अब वो किसी का वेट नहीं कर रहे हैं। अब वो उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो अपनी क्रॉप्स को, अपने मतलब फसल को खुद ही काटेंगे। अब वो किसी का वेट नहीं करेंगे। तो वो बहुत चिंतित था, उससे बहुत ज़्यादा उसको टेंशन हो गई थी कि अब तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है, अब तुमको यहाँ से ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। बेबी लार्क टू क्या बोलता है? चिप चिप मदर आई एम स्केयर्ड व्हाट शैल वी डू। वो बोलता है चिप चिप, दोबारा बोलता है मम्मा मदर आई एम स्केयर्ड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे, है ना। अब वो क्या करेंगे, क्योंकि अब तो किसान और उसके दोनों बेटे खुद ही फसल काटेंगे, तो अब वो क्या करेंगे। अब मम्मा क्या बोलती हैं कि मम्मा के पास सारी बात का सॉल्यूशन होता है, उनको सब कुछ बात पता होती है कि हमें कैसे क्या करना है। तो उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा क्लेवर थी, वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी, ठीक है। वो चाहती थी कि किसान जो है, जो फार्मर है और उसके जो बेटे, उनको सबक मिले, दे कैन लर्न अ लेसन थ्रू दिस। तो वो यही चाहती थी कि वो इससे सबक सीखें, दे लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, कि जो भी उन्होंने किया है, जो भी उन्होंने कभी रिलेटिव्स को बुला रहे हैं, कभी नेबर्स को बुला रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं जा रही थी वहाँ से, वो इसलिए अपने बच्चों को ये दिखाना चाहती थी कि आगे उसमें होता क्या है, क्या किसान खुद ही फसल काटेगा या फिर उसका वेट करता रहेगा किसी के आने का, ठीक है। तो अब उसको लगा कि अब ठीक है, ये सही समय है। अब उसने आगे मम्मी ने क्या बोला उसको देखो। मदला क्या बोलती है, चिल्ड्रन इट इज़ टाइम टू बी ऑफ, अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। द फार्मर हैज़ लर्न हिज लेसन, अब जो फार्मर है, जो किसान है, उसको उसका सबक मिल गया है, उसने अब सबक सीख लिया है, उसको सबक मिल चुका है, इससे उसे सीख मिल चुकी है, मतलब इस सारे इंसिडेंट से या फिर इस सारी घटना से उसको एक सीख मिल चुकी है। ही हैज़ मेड अप हिज माइंड टू अंडरटेक द वर्क हिमसेल्फ, अब उसने अपना माइंड बना लिया है कि उसको खुद ही ये सारा काम करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब फार्मर ने खुद ही बोला था ना कि अब हम अपनी जो क्रॉप है उसको खुद ही हार्वेस्ट करेंगे, अब हम किसी का वेट नहीं करेंगे। उसने बोला था ना एट द डॉन वी विल हार्वेस्ट द क्रॉप आवरसेल्फ, वी विल गेट टू वर्क एंड हार्वेस्ट द क्रॉप आवरसेल्फ। तो उसने कहा कि अब हम खुद ही अपनी क्रॉप को कट करेंगे, उसने ये माइंड अपना बना लिया।
दिस टाइम द ग्रेन विल श्योरली बी कट। अब उसकी मम्मा ने बोला इस टाइम तो जो ग्रेन है वो 100% कट हो जाएगी, मतलब इस बार 100% वो कट जाएगी, कटाई हो जाएगी इन फसलों की। वी मस्ट मूव आवर नेस्ट, हमें अपना नेस्ट घोंसला यहाँ से कहीं और ले जाना चाहिए, क्योंकि अब उसको पता लग गया था कि किसान को जो अपना सबक सीखने को मिल चुका है, उसको पता लग गया है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो अब हमें भी यहाँ से हमारा भी यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे उसको हार्वेस्ट करेगा, रीप करेगा मतलब क्रॉप को, तो उसका घोंसला अगर उसको मिल गया तो उसको फेंक देगा इधर उधर कहीं, तो उसको पता था कि अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसने क्या करा, उसने बोला अपने बच्चों से सो वी मस्ट मूव आवर नेस्ट, क्या हमें यहाँ से अपना घोंसला कहीं और ले जाना चाहिए। सो द मदर लार्क मूव्ड हर नेस्ट, तो अब मदर लार्क जो है अपना घोंसला लेके वहाँ से कहीं और चली गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर एंड हिज सन्स केम विद देयर सीकल्स एंड हार्वेस्टेड द व्हीट। अगली सुबह जो फार्मर है और उसके बेटे हैं वो अपनी दराती लेकर आए और उन्होंने सारे गेहूं की कटाई कर दी। उसने सारे गेहूं की कटाई कर दी। अब हमें इस लेसन से क्या मतलब क्या सबक मिला है, क्या सीख मिली है, मॉरल क्या है इस लेसन का, दैट वी शुड नॉट रिलाई ऑन अदर, वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्फ, कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए, हमें कभी किसी दूसरे के ऊपर रिलाई या डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आपका काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। यू कांट कंप्लीट योर वर्क until unless you depend you rely on others, ठीक है। ये हमें दूसरों पे निर्भर होके अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, इससे बेटा लॉस हमारा ही होता है। अब देखो अगर वो पहले काट रहे तो उसके गेहूँ नीचे नहीं गिरते, अब उसके गेहूँ नीचे गिर गए थे तो अब उसको काटने में उसको डिफ़िकल्टी होगी, गेहूँ को जो अनाज जो गेहूँ उसके उग चुके हैं, जो क्रॉप उसकी है वो नीचे होगी तो ना बताता है इसमें कि वो नीचे गिर चुकी है, पक चुके हैं बहुत ज़्यादा तो वो नीचे गिर चुके हैं। अब उसको वहाँ से उसको उठाने में उसको काटने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर वो पहले ही कट कर लेता बिना किसी की वेट करे तो उसके लिए बहुत इजी रहता हर चीज़। लेकिन ये है कि इसमें जो फार्मर है उसके बेटों को ये सबक मिल चुका है कि अब हमें अपना काम खुद ही करना है, हमें अपने रिलेटिव्स और नेबर्स पे डिपेंड नहीं होना, तो वो अपना काम खुद ही करते हैं। और ये होता भी अगर मैं ये वेट करूँ कि मेरी मम्मा मेरी हेल्प कराएंगी होमवर्क करवाने में, पापा हेल्प कराएंगे, पापा को बड़ा काम आ गया है कहीं, अब आपका शाम तक आप बैठे हो कि वो आएंगे हेल्प कराएंगे, वो आएंगे हेल्प कराएंगे, और वो ना करवा पाए। अगर पापा बहुत टायर्ड है, रात में आके सो गए, या फिर मम्मा बहुत टायर्ड है और वो सो गई, फिर आपका काम तो रह जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने आप काम करना ट्राई करना चाहिए, आपको अपने आप अपना सारा काम करना चाहिए। हाँ कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क, आप उनसे पूछ सकते हो, या टीचर इज़ ऑल्सो देयर, आप टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन काम तो आपको खुद ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं है कि मम्मा मेरा काम करवाएंगे, अब तो आप बड़े भी हो चुके हो यार, अब ग्रोन अप चाइल्ड ना हो, आप 3rd क्लास में भी आ चुके हो है ना, अब 4th में भी जाओगे, फिर 5th में जाओगे, तो अपना बेटा आपको अपना सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। तो आपको भी आई थिंक पता लग गया होगा, मॉरल मिल चुका हो गया कि वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्फ इंस्टेड रिलाइंग ऑन अदर्स। तो थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं हमारा होमवर्क और प्रीवियस होमवर्क सोल्यूशन देखते हैं जो आपने करा हुआ है। पहले होमवर्क देखते हैं। होमवर्क क्या है, रीड दिस लेसन अगेन केयरफुली एंड राइट न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब इसमें जो भी वर्ड्स थोड़े बहुत अंडरलाइन थे वो आपको देखने हैं, कुछ ही न्यू वर्ड्स थे वैसे तो वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके अगर आप मतलब इसके अलावा भी अगर कुछ आपको नया लगता है तो वो भी आप लिख के उसके मीनिंग देख सकते हो। ओके बेटा, कुछ वर्ड्स मैं भी लिख के दे दूँगी कल होमवर्क में, जो मुझे लगेंगे थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट या फिर थोड़े न्यू वर्ड जो मुझे लगेंगे तो मैं उनके मीनिंग्स आपको कल के होमवर्क में दे दूँगी उसमें, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। आपको 2 लेक्चर्स मैंने कल भी दिया था, आज भी था, ये पूरा लेसन है बेटा, ठीक है। मैंने आपको रिटन फॉर्म में दिया हुआ है, कंप्लीट लेसन है, तो इसको रीड करो अगेन और इसमें इसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। इसको खुद ही मतलब रीडिंग स्किल को भी आपको इम्प्रूव करना है, आपको रीडिंग देखनी है कि आपकी रीडिंग अच्छी है या नहीं है, तो रीडिंग करो डेली लेसन की, ठीक है। और आप देखते हैं हम प्रीवियस होमवर्क सोल्यूशन क्या है। मूवमेंट, अब मैंने कुछ वर्ड्स दिए थे कल, मैंने आपको बोला था कि इनके आपको मीनिंग लिखने हैं, तो एक मीनिंग देखो। मूवमेंट होता है पल, इसको हम क्षण भी बोलते हैं, पल या क्षण, ठीक है। जैसे राइट नाउ हम पल बोलते हैं कि इस पल या फिर उस पल मैं वो काम कर रहा हूँगा, ओके। एट दैट मोमेंट आई विल बी डूइंग दिस वर्क, या फिर एट दैट मोमेंट मतलब अभी इसी क्षण तुम्हें यहाँ से जाना है,
मतलब राइट नाउ या फिर एट द मोमेंट यू हैव टू गो फ्रॉम हियर। हार्वेस्ट कटाई, कटाई करना, काटना, गेहूँ की कटाई करना। अभी हमने हार्वेस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं इसमें। स्केयर्ड, डरा हुआ, ईडी की फॉर्म है, पास्ट में जाएगा तो डरा हुआ आएगा, बहुत डरा हुआ थे ना वो जो बेबी लगता है, ही वॉज वेरी स्केयर्ड, वो बहुत डरा हुआ था। और समटाइम यू गॉट स्केयर्ड, आप भी डर जाते हो किसी चीज़ से, तो दैट इज स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। रिलेटिव्स मीन्स इजीली वी नो दिस, क्योंकि वर्ड हमारा मतलब साइंस में भी आता है। रिलेटिव्स होते हैं रिश्तेदार। नेबर्स भी ईजी वर्ड है वैसे, पड़ोसी, जो हमारे पड़ोस में रहने वाले होते हैं, पड़ोसी में हम नेबर्स बोलते हैं, जो आपके घर के आसपास रहते हैं। राइप, पका हुआ, जो पका हुआ चीज़ होती है, जैसे अनाज था, द व्हीट वाज राइपन, जो गेहूँ पक गए थे, तो राइप मतलब पका हुआ। तो ये होमवर्क सोल्यूशन है। आई थिंक आई नो वेरी वेल कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको 2 बार रीड कर सकते हो, और उसमें जो न्यू वर्ड्स हैं उनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, इसके अब हम बुक एक्सरसाइज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि मैं आपको अब कल करवाऊँगी। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल गेट योर बुक एक्सरसाइज and then you will get summary lecture, and after that you will get assignments and revision assignments and all. And now I will conduct a test, means combined test I will take बेटा। अभी हम ये लेसन करने के बाद एक लेसन और करेंगे। कंबाइंड टेस्ट ले सकती हूँ या फिर सेपरेटली भी ले सकती हूँ, वो आपको वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर लेक्चर के थ्रू भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।